ملک ٹائمز میں خوش آمدید۔ 2008 کے مالیگاؤں بم بلاسٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور NIA کی اسپیشل عدالت نے اس فیصلے میں دہشت گردی کے تمام آروپیوں کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ جن پر دہشت گردانہ حملے کا آروپ لگا تھا، جن سب کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا، ان کے خلاف پختہ ثبوت نہیں مل سکے ہیں اور صرف شک کی بنیاد پر ان سب کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ان تمام لوگوں کو بری کیا جاتا ہے۔ سال 2008 میں ستمبر کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور انہی دنوں مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، اور بم بلاسٹ ہونے کے بعد جب تفتیش ہوئی، جب سچائی سامنے آئی، تو اس حملے کے پیچھے نام سامنے آیا پرگیا سنگھ ٹھاکر کا، کرنل پروہت کا، یا اس سوامی کا، ایک اور اس شخص کا، اور اس طرح سے 11-12 لوگ تھے جن سب کو گرفتار کیا گیا۔ ان سب پر مقدمہ چلتا رہا اور 31 جولائی 2025 کو NIA کی اسپیشل عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ جو تفتیش ہوئی، جو سچائی سامنے آئی، اس میں واضح لفظوں میں پایا گیا کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کا پورا ہاتھ تھا اس حملہ کو انجام دینے میں، اسی طرح کرنل پروہت کا ہاتھ تھا، اس کا ہاتھ تھا، اور ان سب لوگوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ سازش رچی تھی اور مالیگاؤں کے اس علاقے میں حملے کو انجام دیا جو سب سے زیادہ مسلم میجورٹی والا ایریا تھا، جہاں مسلمانوں کی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، جہاں نزدیک میں مسجد ہے، اور اس حملے میں تمام مرنے والے مسلمان تھے۔ زخمی جتنے ہوئے ان میں بھی اکثریت مسلمانوں کی تھی، یعنی RSS اور جو ہندوتوا تنظیمیں ہیں ڈائریکٹ اس سے اس حملے کا لنک جڑ گیا تھا۔ لیکن جب 2014 میں سرکار بدل گئی، یعنی کانگریس کی جگہ BJP کی سرکار بن جاتی ہے، اس کے بعد ہی اس حملے کی جو تفتیش چل رہی تھی، جو انکوائری چل رہی تھی، اس انکوائری میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد انکوائری کا، تفتیش کا رخ بدل جاتا ہے، اور سال 2016 میں ہی NIA کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف مکمل اور پختہ ثبوت نہیں مل سکے ہیں۔ اس کے بعد 2019 میں پرگیا سنگھ ٹھاکر کو BJP لوک سبھا کا ٹکٹ دیتی ہے اور یہ MP بھی بن جاتی ہے۔ 2024 میں پھر اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ پورا حملہ کیسے انجام دیا گیا تھا، کیا کچھ ہوا تھا، ذرا سا اس کی مختصر رودات جان لیجئے، پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب لوگ کون ہیں، ان کا کیا جرم ہے، کس آرگنائزیشن سے ان سب کا تعلق ہے، مرنے والے کون ہیں۔ تو اگر مختصر لفظوں میں اس پورے واقعہ کو سمجھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ 2008 کی بات ہے، ستمبر کا مہینہ 29 تاریخ، اور رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے تھے، رات کے 9 بج رہے تھے، تراویح پڑھ کے مسجد سے مسلمان لوٹ رہے تھے، تبھی بم دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورا علاقہ اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے۔ 6 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ 100 سے زیادہ افراد زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب چھان بین ہوئی، تفتیش ہوئی، پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر حملہ ہوا وہاں پر ایک اسکوٹی جلی ہوئی ہے، اور اسی اسکوٹی میں بم کو پہلے سے لا کر رکھا گیا تھا۔ اس اسکوٹی میں جو بم تھا وہ بم بلاسٹ ہوا، اس سے اتنا بڑا حملہ ہوا۔ اس اسکوٹی کا، اس بائک کا صرف نمبر پلیٹ ملا، اور وہ جو نمبر پلیٹ تھا وہ، یا کہہ لیجیے وہ جو بائک تھی، وہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے نام رجسٹرڈ تھی۔ اس کے بعد پولیس نے پرگیا سنگھ ٹھاکر کو گرفتار کیا، اس کے بعد اور لوگوں کا نام جڑتا گیا۔ کرنل پروہت کا نام سامنے آیا، جو آرمی کا بندہ تھا، انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس کا نام سامنے آتا ہے، دوسرے لوگوں کا نام سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد پہلے ممبئی پولیس اس کیس کو دیکھ رہی تھی، پھر مہاراشٹرا ATS نے اس کیس کی چھان بین شروع کی، NIA کے حوالے کیس آیا، اور NIA کی تفتیش میں پورا ثبوت ملتا گیا کہ کیسے ابھینو بھارت نام کی ایک سنستھا اس حملے کے پیچھے تھی، اس نے پوری تیاری کی تھی۔ اس کے علاوہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کا نام تھا، دوسرے لوگوں کا نام تھا، اور ان سب حملوں کے پیچھے 2 بنیادی وجہ تھی۔ پہلا مقصد تھا مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کا خوفزدہ کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ حملہ کر کے ان کو ہی ملزم ٹھہرانا، کیونکہ ان دنوں لگاتار بم بلاسٹ ہو رہے تھے، بم دھماکے ہو رہے تھے، اور ان تمام دھماکوں کا الزام مسلمانوں پر ہی عائد کیا جا رہا تھا۔ لیکن 2008 کے اس بم بلاسٹ میں جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے، بلکہ حملہ کو انجام دینے میں پرگیا سنگھ ٹھاکر کا نام سامنے آیا، اس کے بعد اور بھی کئی حملوں کا راز کھلنے لگا، اور سنگھ پریوار کا نام جوڑنے لگا کہ بھگوا پہننے والے اس دہشت گردانہ حملے کے پیچھے ہیں۔ بھگوا دہشت گردی کی ایک نئی اصطلاح شروع ہوئی، اور لوگوں نے اس بات کا اعتراف کرنا شروع کیا کہ دہشت گردی کا الزام اب تک صرف مسلمانوں پر لگ رہا تھا، جہاں کہیں بھی کوئی بم بلاسٹ ہو رہا تھا مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا، لیکن
सच्चाई ये नहीं थी, बल्कि सच्चाई ये सामने आई कि इसके पीछे आरएसएस के अफराद शामिल थे, दूसरी हिंदुत्व तंजीमों में काम करने वाले लोग इन हमलों में मुलव्विस थे। और तभी भगवा दहशतगर्दी पर लोगों ने बात करना शुरू किया। फिर इन्हीं लोगों की तरफ से, देश के मेजॉरिटी समाज की तरफ से ये कहा गया कि दहशतगर्दी का, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। और आज जब फैसला आ गया है एनआईए की स्पेशल अदालत से और इन सबको बरी कर दिया गया, तब भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का बयान सामने आता है, बीजेपी के दूसरे नेताओं का यही बयान सामने आता है कि भगवा पहनने वाले कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते या हिंदू धर्म के मानने वाले कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। हालांकि दसियों सबूत मिल चुके हैं कि किस तरह, किस धर्म के लोगों ने दहशतगर्दी के वाक़यात को अंजाम दिया है, कैसे बाज़ाब्ता उनका नाम सामने आया है। लेकिन इस फैसले के हवाले से जो हिंदू धर्म के एक्सपर्ट हैं, जो कट्टरपंथी है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी नहीं किया गया है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर से इल्ज़ाम नहीं हटा है, बल्कि भगवाधारियों पर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा था, भगवा दहशतगर्दी की जो इस्तिलाह राइज हुई थी, वो इस्तिलाह ख़त्म हो गई है, दाग मिट गया है। लेकिन आगे कुछ और सबूत हम आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए कि मालेगांव बम ब्लास्ट में किन लोगों की मौत हुई थी। तो ये केस की पूरी डिटेल्स है कि 6 लोगों की इस हमले में मौत हुई थी, 100 लोग जख्मी हो गए थे और तमाम विक्टिम्स सिविलियन थे, यानी आम शहरी थे, और उनमें जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमानों की थी। मरने वाले का नाम कुछ यूँ है, नूरुल अमीन निसार अहमद, इनकी एज 30 साल की है, निसार अहमद अब्दुल रहमान ये 40 साल के, खलील अहमद कादिर खान ये 20 साल के, नसीर अहमद कमरुद्दीन ये 45 साल के, सालिम अनवर शेख ये 22 साल के, यूसुफ खान इस्माइल खान ये 28 साल के। तो 6 मुसलमान जिनकी मौत हुई, बकिया 100 लोग ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और इस हमले को जो अंजाम देने वाले लोग थे उनकी अब डिटेल्स आप देख लीजिए और पहचानिए कि कौन लोग थे जिन पर इल्ज़ाम लगा था इस हमले को अंजाम देने का, और किस तरह सरकार बदलने के बाद ही एनआईए की जो पूरी तफ्तीश है वो बदलनी शुरू हो जाती है। बहरहाल यह है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संघ परिवार से सीधा रिश्ता रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बीजेपी की एमपी रही है, भोपाल से 2019 में बनी। जिस बाइक से बम ब्लास्ट किया गया वो बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ही नाम थी और तभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सामने आया। उसके बाद दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का, पूरा नाम है श्रीकांत प्रसाद पुरोहित। ये इंडियन आर्मी का ऑफिसर था। उसके अलावा इस पर इल्ज़ाम यह था कि इसने आरडीएक्स की सप्लाई किया था और जो प्लानिंग हुई थी, जो साजिश रची गई थी हमला करने की, उसका लेफ्टिनेंट श्रीकांत प्रसाद पुरोहित हिस्सा था। उसके बाद इसमें तीसरा सबसे अहम नाम है इस शख्स का, इसका नाम है स्वामी दयानंद पांडे। ये आरएसएस का बंदा रहा है। उसके अलावा ये अभिनव भारत का मेंबर था। तो अ सेल्फ स्टाइल स्पिरिचुअल लीडर, इसके बारे में कहा गया कि ये खुद से इसने अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर की शक्ल इख्तियार कर रखी थी, स्वामी बन चुका था। और इस पर पूरा इल्ज़ाम था कि इसी ने ही हमले की प्लानिंग की थी, इसने पार्टिसिपेटेड इन प्लानिंग मीटिंग्स, जो मीटिंग हुई थी कि कैसे हमले को अंजाम देना है, तो वहाँ इसकी शिरकत हुई थी। तो ये बहुत अहम है। उसके अलावा एक और अहम नाम है इस शख्स का, इसका नाम है मेजर रिटायर्ड रामेश उपाध्याय। ये आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर था। उसके अलावा लॉजिस्टिक और जो दूसरा कोऑर्डिनेशन का सपोर्ट था, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था, जो कोऑर्डिनेशन का सपोर्ट था, जो भी वसाइल चाहिए हमला के लिए, वो सब इसी शख्स ने फराहम किया था और ये रिटायर्ड आर्मी का था, रामेश उपाध्याय। उसके अलावा एक नाम अजय रही कार का है। उसके अलावा कुछ और ये नाम है, सुखदर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, राजेंद्रा चतुर्वेदी एंड दाहा सिंह। तो तकरीबन 11-12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये सब कहीं ना कहीं हिंदुत्व ग्रुप से जुड़े हुए थे। अभिनव भारत नाम की एक संस्था का बाज़ाब्ता नाम सामने है जिसने इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी और कहा गया कि अभिनव भारत कहीं ना कहीं संघ परिवार से जुड़ा हुआ था। इसमें से प्रज्ञा सिंह का डायरेक्ट संघ परिवार से रिश्ता था जिसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया। तो ये पूरी इस हमले की कहानी है और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। अब एनआईए की अदालत ने तकरीबन 15 सालों के बाद इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि
जिन लोगों पर हमले का इल्ज़ाम है इनके खिलाफ बाज़ाब्ता सबूत नहीं मिल सके हैं। जिन लोगों ने गवाही पेश की है उनकी गवाही में इतना दम नहीं है या उनकी गवाही में, उनके बयानात में ऐसे मवाद नहीं है जिससे इन लोगों को हकीकत में मुजरिम करार दिया जाए, और महज शक की बुनियाद पर इन लोगों को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए इन तमाम लोगों को बरी किया जाता है। लेकिन ये एनआईए की स्पेशल अदालत का फैसला है। एनआईए की अदालत के बाद फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है। लेकिन अलमिया यह है कि अगर मुलजिम मुसलमान होते और एनआईए की अदालत से मुसलमानों को बरी कर दिया जाता तो फ़ौरन महाराष्ट्र सरकार कहती कि इस मामला को हम बम्बे हाई कोर्ट लेकर के जाएंगे। बम्बे हाई कोर्ट से भी अगर मुसलमानों को बरी कर दिया जाए तो फिर सरकार कहती कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे, क्योंकि सब मुजरिम हैं, दहशतगर्द है, इनको फांसी होनी चाहिए। और इनकी हाँ में हाँ देश की अपोजिशन पार्टी भी मिलाती। लेकिन यहाँ जितने मुलजिम थे, जो आरोपी थे, वो मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो महाराष्ट्र की हुकूमत बजाय ये कहने के कि देश में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, स्टेट में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और एनआईए की अदालत के फैसला को चैलेंज करने के लिए हम बम्बे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं कहा महाराष्ट्र स्टेट सरकार ने, बल्कि महाराष्ट्र की हुकूमत इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। इसे हिंदुत्व की जीत बता रही है। इसको कहा जा रहा है कि जो दाग लगा हुआ था वो दाग ख़त्म हो गया। और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। ये 3 अपोजिशन लीडर हैं जिनका आगे मैं तस्करा करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें साल 2006 के मुंबई में लोकल ट्रेनों में हुए हमले का तस्करा था। और उस लोकल मुंबई ट्रेन हमले में तकरीबन 11-12 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। 200 से ज़्यादा लोगों की उस हमले में हलाकत भी हुई थी। वो 11-12 लोग जिनको 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन हमले का मुलजिम बताया गया, आरोपी बताया गया, एनआईए की अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया था उम्र कैद की सज़ा का, उसके अलावा मौत की सज़ा का। बम्बे हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो बम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और इन तमाम लोगों को बरी किया जाता है। जैसे मुसलमानों को, या कह लीजिए 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन हमले के मुलजिमों को बरी करने का फैसला बम्बे हाई कोर्ट से सामने आता है। महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने कहा कि फैसला गलत है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और फ़ौरन महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि बम्बे हाई कोर्ट के फैसला पर स्टे लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बम्बे हाई कोर्ट के फैसला पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और कहा जो लोग बरी हो चुके हैं वो बरी ही रहेंगे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे केस में बम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को नज़ीर नहीं बनाया जाएगा, एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा। अब जो अहम बात वो ये कि तस्वीर जो है ये वर्षा गायकवाड़ की है जो कांग्रेस की एमपी है, ये प्रियंका चतुर्वेदी है जो शिवसेना के एमपी है, और ये है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के सरबराह हैं। और ये दोनों नए नए सेकुलर बने हैं, या कह लीजिए इनकी पार्टी को सेकुलर पार्टी का दर्जा मिला है और कांग्रेस तो शुरू से सेकुलर पार्टी है। इन तीनों ने, इसके अलावा भी कई और लोग हैं जिन सब ने पिछले दिनों जब मुसलमानों की रिहाई का फैसला सुनाया बम्बे हाई कोर्ट ने, तो इन सब ने ये कहा कि ये फैसला गलत है और महाराष्ट्र सरकार को चाहिए, बीजेपी को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करे और इन तमाम मुस्लिम मुलजिमों को फांसी मिलनी चाहिए, इनको उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। ये बयान था वर्षा गायकवाड़ का, प्रियंका चतुर्वेदी का या उद्धव ठाकरे का। लेकिन आज जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फैसला आया है, दूसरे मुलज़मीन का फैसला आया है और एनआईए की अदालत ने इन सबको बरी करार दिया, जबकि वाज़ेह सबूत मौजूद हैं और एनआईए की जो तफ्तीश का रुख बदला है सरकार बदलने के बाद बदला है। इसी एनआईए ने इन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया था और 2016 में इसी एनआईए ने कह दिया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर या इन सब के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तब ये सब चुप हैं, खामोश हैं। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि इस मामले को महाराष्ट्र सरकार को बम्बे हाई कोर्ट ले जाना चाहिए। इन सब ने देश में हमला किया था, मालेगांव में दहशतगर्दाना हमला किया था, बेगुनाहों की मौत हुई थी, इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और बम्बे हाई कोर्ट जाना चाहिए। ऐसी मांग इनमें से किसी ने नहीं की है। सिर्फ एक बयान दिया है संजय राउत ने, और संजय राउत ने जो कुछ कहा एक दूसरे नज़रिया से कहा। दरअसल बीजेपी के तमाम नेता, खा वो अमित शाह हों या उनके स्टेट के नेता हों या दूसरे लोग हों, ये सब ये कह रहे हैं कि हिंदू
रिलीजन से, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। भगवा दहशतगर्दी की जो इस्तिलाह राइज की गई थी वो गलत है। कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा दहशतगर्द जैसा लफ्ज़ या टर्म इस्तेमाल किया, वो सब अदालत से गलत साबित हो गया। इसके जवाब में संजय राउत ने कहा कि अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता तो फिर कुलभूषण यादव, जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर रखा है और वो हिंदू है, पाकिस्तान उसको दहशतगर्द कह रहा है, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि कुलभूषण यादव दहशतगर्द नहीं है और पाकिस्तान क्यों उसे दहशतगर्द कहने की हिम्मत कर रहा है। तो बड़े दबे लफ्ज़ों में एक तरह से कुछ बीजेपी पर अटैक किया संजय राउत ने, लेकिन वो भी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या कुछ कहा पहले सुनिए। ऑन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, अ हिंदू कैन नॉट बी अ टेररिस्ट स्टेटमेंट्स इन द राज्य सभा यस्टरडे, शिवसेना MP संजय राउत सेज अ टेररिस्ट डजंट हैव के। दरअसल अमित शाह ने कल पार्लियामेंट में कहा था कि कोई भी हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता। तो संजय राउत एक बयान में कह रहे हैं जवाब में कि अगर कोई भी दहशतगर्द हिंदू नहीं हो सकता या दहशतगर्द का रिलीजन हिंदू नहीं हो सकता, द पीपल ऑफ, तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो कुलभूषण यादव को दहशतगर्द कहती है, हिंदू टेररिस्ट उसको कहा जाता है, और हम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं कि कोई कुलभूषण यादव को हिंदू टेररिस्ट कहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान से बातचीत करे और कहे कि वो हमारा शहरी है, हमारा सिटीज़न है, और उसको फ़ौरन रिहा करे, उसको आज़ाद करे, उसको दहशतगर्द ना कहे। तो ये संजय राउत ने एक बयान दिया किसी तरह से, लेकिन जो मामला है कि मालेगांव बम ब्लास्ट को जिन लोगों ने अंजाम दिया उसको NIA की अदालत ने बरी कर दिया, तब ये तमाम लोग चुप हैं, खामोश हैं, और बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है कि हिंदू दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। सच्चाई यही है कि इस देश में दहशतगर्दी के बेशुमार मामले सामने आए हैं और कई मामलों में दहशतगर्दाना हमलों का लिंक जो है संघ परिवार से जुड़ा है, अभिनव भारत जैसी तंजीमों से जुड़ा है, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सब से जुड़ा है, लेकिन पर्दा डालने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि NIA की स्पेशल अदालत ने आज फैसला सुनाया, तो उसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में ये भी बताया कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं होता, किसी भी रिलीजन के मानने वाले दहशतगर्द हो सकते हैं। पिछले दिनों में कई सारी वीडियो सामने आई जिसमें पता चला कि हिंदू धर्म के मानने वाले नाम बदलकर हमला कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं। तो आखिर वो सब क्या है। और आखिर में आपसे गुजारिश होगी कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, या इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा, वहाँ 99 रुपये का प्लान आपको चूज़ करना है और आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या Paytm पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।